Assalamu alaikum. Good morning, afternoon, everyone. Today we are going to discuss one of the most important laws of evidence in Pakistan, the Qanun-e-Shahadat Order 1984. This law replaced the old Evidence Act of 1872 and was enacted to bring the rules of evidence in conformity with the principle of Islam. It applies to all courts in Pakistan and governs the way facts are proved in judicial proceeding. Our lecture will cover the concept of evidence, what can be produced before the court, the types of evidence, oral, documentary, direct, circumstantial, and digital evidence, the competency and examination of witness, including chief examination, cross examination, and re examination, the relevancy of facts, why only relevant evidence is admissible, modern provision, especially Article 164, which make digital evidence and admissible. By the end of this lecture, you will understand how evidence is introduced, tested, and accepted in court under Pakistani law, and why relevancy and reliability are the key principle in judicial proceeding. First of all, we discuss about the introduction. Some outlines: introduction, relevant provision, purpose, types of evidence, admissibility of evidence, witness competency, examination of witness, modern provision, importance, conclusion. और आगे ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसे आप गौर से देखें। इसमें कौन सी चीज़ें बेस करती हैं, किस पे ये बेस करता है? फैक्ट्स, रेलिवेंट, यस एविडेंस, प्रोड्यूस्ड, विटनेस एग्जामिन्ड, कोर्ट डिसीजन, नो, रिजेक्टेड। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी इसका इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। Enforced in 1984, replaced Evidence Act 1872 applies to all court in Pakistan। इसका क्या मतलब है कि अदालती निज़ाम में शहादत एविडेंस की इस्लामी असूलों के मुताबिक नफाज, यानी जो पुराना कानून एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लिया पाकिस्तान की तमाम अदालतों में। यानी ये सदर ज़ियाउल हक के दौर में ये कानून आया था 28 अक्टूबर 1984 के अंदर। ये चैप्टर 2 के अंदर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 90 तक। यानी सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग क्या है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 6 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेक्शन 7 विच आर ओकेशन, cause or effect of facts in issue. Section 8 motive, preparation and previous subsequent conduct. Section 9 fact necessary to explain or introduce relevant facts. Section 10 things said or done by a conspirator in reference to common design. Section 11 facts not otherwise relevant become relevant. Contradiction, consistency. Section 17 to 21 admission, what a party admits can be evident. Section 22 to 30 confession, condition when confession are relevant or not. Section 32 to 39 statement by person who cannot be called as witness, dying declaration. Section 40 to 44 judgment of courts as relevant facts. Section 45 to 51 opinion of experts, doctor having experts, fingerprint, digital experts. Section 59 to 60 proof of facts by oral evidence. Section 61 to 73 proof of contents of documents. Section 78 to 90 public document presumptions of to as to document. Then purpose क्या है? To guide courts about evidence and proof, to decide what evidence is acceptable or unacceptable, to ensure fair trial and justice। यानी पर्पस में क्या बताया इन्होंने, यानी हमने ना कोर्ट्स को गाइड करना है एविडेंस और प्रूफ के बारे में, यानी ये एविडेंस एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, फेयर ट्रायल और जस्टिस के बारे में। देन इसकी टाइप्स ऑफ एविडेंस आते, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ evidence: oral evidence, documentary evidence, direct and circumstantial evidence।
ओरल एविडेंस क्या होता है? स्पोकन बाय अ विटनेस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिटन रिकॉर्ड्स, एग्रीमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. एंड देन थर्ड वन, डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आई विटनेस ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन सिचुएशंस एंड कंडीशन. यानी अगर आप पेपर को या इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए अगर आप डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को अलग अलग लिखेंगे तो भी ये ठीक है. यानी डायरेक्ट का आप लिखते हैं आई विटनेस ऑफ एन इवेंट, या और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लिखते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन. अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल करते हैं. यानी ओरल एविडेंस यानी ज़बानी शहादत, वो शहादत जो गवाह अपनी ज़बान से अदालत में बयान करे. यानी गवाह जो खुद अपनी आंखों से देखे या अपने कानों से सुने हुए हकायक बयान करे. इसकी क्या एग्जाम्पल है? किसी हादसे या जुर्म को अपनी आंखों से देखने वाला शख्स अदालत में बयान करे. एंड देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो शहादत जो किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड के जरिए दी जाती है, असल या नकूल दोनों काबिल कबूल हो सकती है कानूनी शराइत के साथ. इसकी क्या एग्जाम्पल होगी? मुआहदा हो गया, रजिस्ट्री, सरकारी रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह. थर्ड वन क्या है? डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस. डायरेक्ट एविडेंस क्या है? बरह रास्त शहादत, वो शहादत जिसमें गवाह बरह रास्त वाक़े को देखता है या सुनता है, जानता है. एग्जाम्पल, किसी कत्ल के चश्मदीद गवाह की गवाही देना. सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी हालात का वाक़याती शहादत, वो शहादत जो किसी वाक़े को बरह रास्त साबित ना करे बल्कि वाक़यात और हालात के ज़रिए नतीजा निकाला. जिसकी क्या एग्जाम्पल है? मुलज़म को जाए वारदात पर होना, इसके कपड़ों पर खून के धब्बे वगैरह नजर आना. यानी ये इसकी थ्री टाइप्स की एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह के एविडेंस कोर्ट्स के अंदर पेश कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है एडमाइजेबिलिटी ऑफ एविडेंस. एविडेंस मस्ट बी रेलिवेंट, यानी जो एविडेंस है वो रेलिवेंट हो. मस्ट बी गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी कॉम्पिटेंट विटनेस होना चाहिए. हैरिस से क्या कहता है? सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड, यानी जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है वो अलाउड नहीं. देन अगली स्लाइड में विटनेस की कॉम्पिटेंसी, यानी एक विटनेस की कॉम्पिटेंसी उसकी क्या काबिलियत होनी चाहिए? एनी रेशनल पर्सनल कैन बी अ विटनेस, एम्फोसाइज ऑन जस्ट एंड ट्रूथफुल. अब देन है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी एक विटनेस की एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे. इसकी भी आगे तीन फर्दर टाइप्स है: चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन. यानी अगर हम इसको अच्छा सा क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ अच्छी, तो देखें इसको ऐसे एरो के चीफ एग्जामिनेशन, एरो लगा के क्रॉस एग्जामिनेशन, देन री एग्जामिनेशन. अब हम इसकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल में आपको बताती हूँ. सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन यानी इब्तदाई जांच, मुआयना बिल मुकदमा. ये गवाह से सवालात इसी पार्टी के वकील करता है, यानी ये गवाह से सवालात उसी पार्टी के वकील करता है जिसने गवाह को अदालत में पेश किया है. मकसद क्या है? अदालत के सामने हकायक वाज़ा करना और गवाह को असल बयान रिकॉर्ड कराना. ये पहला मरहला होता है. यानी ये गवाह से सवालात किए जाते हैं, नहीं उसी पार्टी का वकील करता है जिसने गवाह को अदालत में पेश किया होता है, वही वाला. और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? ये दूसरा मरहला है, यानी ये सवालात मुखालिफ पार्टी का वकील करता है, यानी जो ओपोजिट होता है उसके. मकसद क्या है? गवाह के बयान को परखना, झूठ या तजाद निकालना और सच्चाई की जांच करना. ये सबसे अहम मरहला समझा जाता है क्योंकि इसमें गवाह की क्रेडिबिलिटी जाहिर होती है. यानी इससे पता चलता है कि ये जो गवाह है ये सही है या गलत है. इससे यानी वो ओपोजिट पार्टी, यानी जो मुखालिफ पार्टी होती है, वो अपनी तरफ से उससे सवाल पूछती है, यानी सच्चाई को जांचती है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं. थर्ड है री एग्जामिनेशन, दोबारा जांच करना. यानी फर्स्ट पहला मरहला क्या था? इब्तदाई जांच, जिसमें हमने चीफ एग्जामिनेशन है. उसके बाद था दूसरा मरहला क्रॉस एग्जामिनेशन, जिस और थर्ड था री एग्जामिनेशन जिसमें दोबारा उससे सवाल, यानी ये दोबारा सवालात उसी पार्टी का वकील करता है जिसने गवाह पेश किया था. मकसद क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन में उठने वाले शहादत या इल्हाम को साफ करना. यानी जो मुखालिफ पार्टी के वकील ने जो उस पे के खिलाफ जो जो सवाल उठाए थे, जो जो उसने बातें पूछी थी उससे, और उसके खिलाफ वो यानी उसके फिर वो दोबारा वो वकील यानी उसी पार्टी का वकील उससे दोबारा सवाल करता है, दोबारा गवाह को पेश करता है. इसमें सिर्फ वजाहत की जाती है, नया मवाद शामिल नहीं किया जा सकता सिवाय अदालत की इजाज़त से. यानी हमें तरतीब हमेशा ये होती है: चीफ एग्जामिनेशन, एरो क्रॉस एग्जामिनेशन, एरो री एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है मॉडर्न प्रोविजन, यानी आगे ये कुछ चीज़ें मैंने मॉडर्न प्रोविजन में ऐड की है कि इसमें कौन कौन से एविडेंस भी और भी इस्तेमाल हो सकते हैं डिजिटल तौर पे. इसमें दो तरह के होते हैं: डिजिटल एविडेंस एडमाइजेबल और इम्पोर्टेंस ऑफ रेलिवेंसी. डिजिटल एविडेंस एडमाइजेबल क्या होता है? कानून शहादत ऑर्डर 1984 में आर्टिकल 164 के तहत अदालत को इख्तियार दिया गया है कि वो जदीद आलात के ज़रिए हासिल शुदा शहादत को कबूल करे. इसमें शामिल है फ़ोटोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. मकसद क्या इसका? क्या क्या पर्पज़ होगा? मौजूदा दौर के जदीद ज़राए को अदालती निज़ाम में शामिल करना ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों. यानी इस तरह से अगर कोई कोई रिकॉर्डिंग यानी कोई किसी जगह किसी वारदात की जगह पे खड़ा हुआ है
तो वो उसको उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो उसके पास मोबाइल फ़ोन या कुछ भी हो तो उससे रिकॉर्डिंग कर लेता है ताकि वो उसे एज़ अ विटनेस अदालत में पेश कर सके। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ रेलिवेंसी, अहमियत, ताल्लुक और मुनासबत। सिर्फ वही शहादत काबिल कबूल है जो मुकदमे के हकायक से बरह रास्त ताल्लुक रखती है। गैर मुतलका इर्रेलीवेंट शहादत अदालत वक़्त ज़ाया करती है और फैसला मुतासर करती है। रेलिवेंसी का असूल कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 सेक्शन 5 टू 11 में वाज़ा किया गया है। मकसद क्या इसका, मुकदमे को गैर ज़रूरी बातों से पाक रखना और सिर्फ वही शहादत लेना जो इंसाफ तक पहुंचने में मददगार हो। डिजिटल एविडेंस आर्टिकल 164 सेक्शन 5 टू 11 प्लस सिर्फ मुतलका शहादत रेलिवेंसी, ये दो इसमें आर्टिकल इस्तेमाल हुए हैं। और उसके बाद ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ पेश किया जिसमें ओरल 40% डॉक्यूमेंट यूज हुआ है, डॉक्यूमेंट ओरल 40% यूज हुआ है, डॉक्यूमेंट्री 35% हुआ है और डिजिटल 25%। चेक करें किस तरह से ये बनाया हुआ है। उसके बाद देन है इम्पोर्टेंस क्या है, इंश्योर करना जस्टिस थ्रू फेयर प्रूफ, प्रिवेंट्स फॉल्स एविडेंस, ब्रिंग्स लॉ क्लोजर टू इस्लामिक इंजेक्शन। यानी हमने जो जस्टिस है उसको फेयर के जरिए प्रूव करना है, कोई भी गलत एविडेंस को प्रूव नहीं करना अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक इंजेक्शन, यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को नजर रखते हुए कि इस्लाम ने हमें किस तरह से सिखाया। देन है कंक्लूजन, strengthen judicial system brings evidence law in line with Islamic principle. Before we end today's lectures, let us quickly recall the key points. The Kanun-e-Shahadat Order 1984 replaced the Evidence Act of 1872 and aligns Pakistan's evidence law with Islamic principles. Evidence can be oral, documentary, direct, circumstantial, or digital. Third point क्या है? The examination of witness, chief examination, cross-examination, and re-examination is the foundation of testing truth is court. The principle of relevancy ensure that shit. Before we end today's lecture, let us quickly recall the key points. The Kanun-e-Shahadat Order 1984 replaced the Evidence Act of 1872 and aligned Pakistan's evidence law with Islamic principle. Then है evidence. Evidence can be oral, documentary, direct, circumstantial, or digital. The examination of witness, chief examination, cross examination, and re examination is the foundation of testing truth is court. The purpose of the principle of relevancy ensure that only facts connected to the case are admissible. Modern law through Article 164. Modern law through Article 164 has recognized digital evidence as admissible in courts. Chief examination. The examination of witness, chief examination, cross examination, and re examination is the foundation of testing truth is court. Then hai conclusion. At the end of the point, in conclusion, the law of evidence is the backbone of the judicial system because without credible and relevant evidence, no fair decision can be made. It ensures that justice is not based on assumptions but on facts properly proved before the court. Thank you for your attention. In our next class, we will discuss about some case laws and practical example to see how these provisions are applied in real court proceeding. Thank you so much.